Hello everyone, I welcome you all once again to my online classes। जैसे कि आपको पता है कि हम अलेक्जेंडर पोप को डील कर रहे हैं और अलेक्जेंडर पोप की इंट्रोडक्शन, अलेक्जेंडर पोप के कुछ वर्क्स लाइक द डंशियार्ड, द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट, द एसे ऑन क्रिटिसिज्म और इंट्रोडक्टरी पार्ट को मैंने पहले डील कर लिया है। आज की क्लास में हम एसे ऑन मैन को डील करेंगे। As the title mentions, this essay talks about man in general and logic, reason, rationalization, wit and decorum in particular. All right? तो सबसे पहले हम पब्लिकेशन डेट की बात करेंगे। एसे ऑन मैन की पब्लिकेशन डेट 1733 या 1734 में हुई है। इसकी ओपनिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओपनिंग लाइन को हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। Opening is awake St. John, learn all meaner things to law, ambition and pride of things. Alright, so this is the opening quote of essay on man. इसको ध्यान में रखना है, इसकी ओपनिंग को याद रखना है। Awake St. John is the opening of essay on man, right? Next, the important thing is to whom it is dedicated, right? essay on man is dedicated to, essay on man को पोप ने किसको डेडिकेट किया है? हेनरी सेंट जॉन को किया। ऑल राइट, इट वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी सेंट जॉन। ऑल राइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग में। सो essay on criticism is dedicated to Henry St. John. He was first Viscount of Bolingbroke. All right, Bolingbroke is the name of a city. He was the first Viscount of Bolingbroke. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये Bolingbroke वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि हेनरी सेंट जॉन को अलेक्जेंडर पोप ने एसे ऑन मैन जो है दैट वाज डेडिकेटेड। ऑल राइट, नाउ लेट मी टॉक ब्रीफली अबाउट, वेट गाइज, हाँ यस, let me talk briefly about the central idea or the central theme of essay on man. All right, so the central theme जो है essay on man का, that is related to John Milton's Paradise Lost. All right, essay on man के अंदर जो पोप है, he is talking about rationality, he is talking about vindication. All right, and the central idea of the essay on man is he talks about the rationalization and vindication of the ways of God to man. All right, in contrast to the central theme of essay on man, John Milton talks about justification. He talks about justification of the ways of God to man. All right, तो जॉन मिल्टन के केस में कंफ्यूज नहीं होना है। जॉन मिल्टन के केस में इट्स जस्टिफिकेशन, and in the case of Alexander Pope's essay on man, it is rationalization or vindication. Vindication means to respect. All right, मतलब क्या है कि man जो है, he respects everything which is being bestowed by Almighty God to him. All right, it is vindication or rationalization, and Milton's case के अंदर it is justification. The rest is the same. All right, there are some major quotes इन द वर्क। उस मेजर कोट्स की बात करेंगे। मेजर कोट्स की बात करने से पहले, एज यू नो, वोल्टायर इज़ अ क्लासिकल राइटर एंड ही इज़ मेनली नोन फॉर अ वर्क कैंडिड। ऑल राइट, यहाँ पे एक कोट है, द कोट इज़ लाइक वाइज, एंड स्पाइट ऑफ प्राइड
and spite of pride, in curing reason's spite, in curing reason's spite, one truth is clear, one truth is clear, whatever is right. पोप इस कोट के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि प्राइड भी है, रीज़न भी है, ट्रूथ भी है, इन सारी एस्पेक्ट्स के होने के बावजूद भी जो भी हमें गॉड की तरफ से मिला है दैट इज़ राइट. वट एवर इज़ राइट. वी आर नॉट इन पोजिशन टू थैंक गॉड फॉर द ऑल थिंग्स. वट एवर ही हैज़ गिवन अस इट इज़ right and right. Whatever is right, right? This particular quote, whatever is right, I mean this whole quote was, I mean this idea and notion was criticized by Voltaire. Voltaire ने इसको criticize किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे. Whatever is right को Voltaire ने अपने एक वर्क कैंडिड में criticize करा है. All right? नेक्स्ट बात करेंगे हम रूसो की. रूसो एसे ऑन मैन के बारे में क्या कहते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट रूसो सेज दैट इट सॉफ्टन्स माई इल्स एंड मेक मी कंफर्टेबल. ऑल राइट, मैं एग्जैक्ट कोट आपको बता रहा हूँ कि रूसो ने इस वर्क के बारे में क्या कहा है. रूसो सेज दैट आपको पता है कि रूसो एक राइटर भी थे. ही वॉज एन एजुकेशनल थियरिस्ट ऑल्सो. ही सेज दैट इट सॉफ्टन्स माई इल्स एंड brings me patience. Very, very important. And brings me patience. All right, this is a statement made by Rousseau in context of this work, Essay on Man. All right, guys, गर्मी बहुत ज़्यादा है. रूसो क्या कहते हैं कि this work, after reading this work, it has softened my ills, it has softened my evils, it had made me reasonable and comfortable by bringing patience to me. All right, this is a statement made by Rousseau. All right, next कुछ important guys यहाँ पे quotations हैं इस वर्क के अंदर. वो quotations बहुत important हैं, एक एक करके आपको लिखवा रहा हूँ. उससे पहले Essay on Man, it comprises of 4 epistles. It comprises of 4 epistles. Question बन सकता है, epistle means letters. Essay on Man comprises of 4 epistles written in heroic couplet. It's again written in heroic couplet. As you know, right, guys, heroic couplet जो है वो एक traditional form of writing पोम्स, एपिक पोम्स है, वॉर पोइट्री है. तो ये जो एसे ऑन मैन है ये भी आपका हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो थे इन्होंने ही मेड सक्सेसफुल यूज ऑफ हीरोइक कपलेट. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स. ऑल राइट, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, कांत एक राइटर हैं, एम्यूनल कांत. He was a German romantic writer. All right. He was also very much influenced by essay on criticism. ये भी essay on criticism से बहुत प्रभावित थे. So question कहीं ना कहीं बन सकता है कि which among the following writer was very much influenced by essay on Man? He was Kant. All right. ये भी आपको ध्यान में रखना है. Next कुछ important हमारे पास कोट्स हैं. उन कोट्स को रटना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. उन कोट्स की बात आपके लिए कर रहा हूँ जो कोट्स एसे ऑन मैन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं. स्टार्टिंग में तो अवेक सेंट जॉन वाली कोट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, नेक्स्ट इज नो देन दाई सेल्फ, नो देन दाई सेल्फ
not presume to God, not presume to God, not presume God to scan, very right, not presume God to scan the proper study of mankind is, the proper study of mankind is man. Alright, this quote is very important guys, ये quote आपको ध्यान में रखनी है. दोबारा से पढ़ रहा हूँ. Know then thyself, not presume God to scan, the proper study of mankind is man. ये quote बहुत बारी एग्जाम में पूछी गई है और this quote is the part of essay on man. Second important quote की अगर हम बात करें, that is go wondrous creature, go wondrous creature, go wondrous creature, mount where science guides, mount where science guides, mount where science guides, go measure earth, go measure earth, go measure earth, wave air and state the tide, wave air and state the tides, state the tides. All right, this is a quote mentioned by Alexander Pope in Essay on Man. आप कहीं पे भी देखें इस वर्क के अंदर लॉजिक पे ज़्यादा फोकस है, रीज़न पे ज़्यादा फोकस है. आप साइंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है. आप अर्थ एयर को मेजर करने की बात कर रहे हैं, आप टाइड्स को स्टेट करने की बात कर रहे हैं. तो लॉजिक, रीज़न, विट, डेकोरम, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इस पोम के अंदर हो रहा है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज गो टीच एटर्नल विजडम हाउ टू रूल. ऑल राइट, ये कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कोट. इन सारी कोट्स को बच्चों रट के जाना है, चाहे आप मास्टर कार्डर की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, ऑल राइट, केवीएस की कर रहे हैं, या यूजीसी नेट जिसके लिए हमें क्लासेस चला रहे हैं, या उसकी तैयारी कर रहे हैं. गो टीच eternal wisdom how to rule. All right, then drop into thyself and be a fool. Then drop into thyself and be a fool. All right, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ. Go teach eternal wisdom, rule eternal wisdom, how to rule. All right, how to rule. Then drop into thyself and be a fool. Okay, this is also one of the major quote mentioned by Alexander Pope in an essay on man. All right, one important and last fact, Plato is mentioned by Pope in this essay. प्लेटो को एसे ऑन मैन के अंदर पोप ने मेंशन करा है. ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट एसे ऑन मैन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क रिटन बाय Alexander Pope, and it is The Rape of the Lock. Very important, very frequent asked work. बहुत बारी इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो इंग्लिश से एसोसिएटेड कोई भी एग्ज़ाम हो. राइट, दिस वर्क इज़ फ्रीक्वेंट आस्क्ड वर्क इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. ऑल राइट, वेट गाइस.
द रेप ऑफ द लॉक की बात करेंगे। द रेप ऑफ द लॉक is a mock heroic narrative poem. All right, it's a mock heroic narrative poem. Mock heroic narrative poem मैं बिगिनिंग से, जब से मैंने पोप को स्टार्ट किया तब से बताता आ रहा हूँ। मॉक heroic narrative poem is a sort of poem which mocks the prevailing function of a particular era. इस वर्क के अंदर जो भी फैशन था, जो भी कस्टम था, जो भी कल्चर था 18th सेंचुरी का, उसको मॉक किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। ऑल राइट, सो रेप ऑफ द लॉक इज़ अ मॉक हीरोइक नैरेटिव पोम। अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो पब्लिकेशन जो है रेप ऑफ द लॉक की, इट वॉज पब्लिश्ड थ्राइस, 3 बार पब्लिश हुई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1712, then it was again published in 1714. For the last time it was published in 1717. All right, I am a bit confused about the second time publication. Yeah, it was in 1714. अब आपको ये ध्यान में रखना है गाइस कि 1712 के अंदर in how many cantos it was published? It was published in 2 cantos. In 1714 it was published in 5 cantos. Very important. एंड 1717 की जो पब्लिकेशन डेट है, इट इंट्रोड्यूसेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इट इंट्रोड्यूसेस अ मेजर कैरेक्टर नेम्ड क्लैरिसा फॉर हर ह्यूमरस स्पीच। 1717 की पब्लिकेशन से क्वेश्चन है, 14 की भी और 12 से भी। कैंटोज से क्वेश्चन है रिसेंटली 1717 की पब्लिकेशन में से। क्वेश्चन ये पूछा था कि 1717 के अंदर किस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज क्लैरिसा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1717 पब्लिकेशन बाय अलेक्जेंडर पोप। ऑल राइट, और क्लैरिसा का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है रेप ऑफ द लॉक के अंदर। शी इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर giving Caesars to Peter when he snatched the lock of Blinda. All right, मैं कहानी पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, कहानी आप सबको मालूम है। मैं जो मेजर फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। ऑल राइट, अच्छा जी। कलेक्टिवली दिस वर्क इज डिवाइडेड इनटू 5 कैंटोज, राइट। और कैंटो और एक्ट में फ़र्क क्या होता है? वन इज़ कैंटो एंड सेकंड थिंग इज़ एक्ट। ऑल राइट, एक्ट इज़ द डिवीजन ऑफ शॉर्ट स्टोरी और प्ले, एंड कैंटो इज डिवीजन ऑफ लॉन्ग पोम। ऑल राइट, सो हमारा जो रेप ऑफ द लॉक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कैंटोज। अब गाइज ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस कैंटो के अंदर जो ब्लिंडा का लॉक था उसको काटा था। इट वॉज स्नैच्ड इन कैंटो 3। कैंटो 3 के अंदर ब्लिंडा का जो बाल था, जो हेयर था, वो काटा गया था। ऑल राइट, ये आप कैंटो 3 को याद रखेंगे। ओके, अच्छा जी, कुछ और फैक्ट्स की बात करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम रेप ऑफ द लॉक, आई मीन दिस वर्क वॉज published anonymously in a collection titled as, collection का नाम क्या था? The name of collection was it was published in Lintott's Miscellaneous Poems and Translation. Lintott's Miscellaneous Poems and Translations. All right, सबसे पहले लिंटॉट्स मिसलिनियस पोम्स एंड ट्रांसलेशन के अंदर रेप ऑफ लॉक जो था वो पब्लिश हुआ था एनोनिमसली मीन्स विदाउट
having the idea of the writer or the author. All right. Next, rape of Locke is based on an actual event which happened in the life of a friend of Alexander Pope called as Chiral. Chiral was a friend of Alexander Pope, and this incident happened in the real life of Chiral, and he narrated the whole story to Alexander Pope. Then he come up with this mock heroic narrative poem. All right. नेक्स्ट इस वर्क के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज द ओरिजिन ऑफ द रेप वर्ड इन द टाइटल. ऑलराइट, जो रेप वर्ड टाइटल के अंदर है इसका लैटिन ओरिजिन है, और लैटिन में एक शब्द है रेपेर, RAPARE. इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है दैट इज टू ग्रैब, टू स्नैच एंड टू सीज. ऑलराइट, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है, रेप इज अ लैटिन वर्ड और लैटिन में रेपेयर कहा जाता है. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है दैट इज रिटन ऑन द वाइट बोर्ड, टू ग्रैब, टू स्नैच और टू सीज. ऑलराइट, और बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं, इट्स अ स्टोरी ऑफ ब्लिंडा एंड पीटर, हर सूटर. ऑलराइट, तो वो ना एक सी वॉयेज से हैम्पटन कोर्ट जा रहे हैं, और उस सी वॉयेज में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. उस सी वॉयेज के दौरान लॉर्ड पीटर जो हैं वो ब्लिंडा का बाल, एक जो जुल्फ होती है, एक जो लॉक होता है, उसको काट देते हैं. ऑलराइट, अच्छा जी, अब जो है वो सी वॉयेज से कहाँ जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर गोइंग वाया सी वॉयेज टू हैम्पटन कोर्ट, और वहाँ पे वो एक गेम खेलते हैं. द नेम ऑफ गेम इज ओम्बर. ओम्बर इज बेसिकली अ प्ले कार्ड, इट्स अ प्ले कार्ड गेम. ऑल राइट, हैम्पटन कोर्ट को भी याद रखेंगे, ओम्बर को भी याद रखेंगे. और इस वर्क के अंदर जो भी सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज़ हुआ है, जो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, they were derived from Rosicrucian. They were derived from Rosicrucian mythology. Rosicrucian mythology पे एक नॉवल बेस्ड है. उस नॉवल का नाम आपको बता रहा हूँ. दैट नॉवल इज कॉम्टे डी गैबलेस. कॉम्टे डी गैबलेस. ऑलराइट, कॉम्टे डी गैबलेस. इस नॉवल से जितनी भी हमारी यहाँ पे सुपर नेचुरल मशीनरी यूज़ हुई है इस वर्क के अंदर, वो ड्राइव करी गई है. ऑलराइट, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं बात करूँगा आपके साथ जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है. हालांकि जो भी डिटेल मैंने आपसे शेयर करी अभी तक दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन. ऑलराइट, अब फर्स्ट जो फैक्ट जिसमें 100% चांस है कि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रेप ऑफ लॉक, जो लॉक के कटने का जो इंसिडेंट है दैट वाज कंपेयर्ड विद एब्डक्शन ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय. एज यू नो, हेलेन ऑफ ट्रॉय वाज द ब्यूटीफुल लेडी, और इनकी खूबसूरती पे, यानी शी वॉज द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू कंट्रीज. ऑलराइट, इनके पीछे दो कंट्रीज़ की फाइट हो गई थी. सो रेप ऑफ द लॉक को इसके साथ कंपेयर किया गया है. एंड सेकंड, इट वाज लाइक अ स्टॉर्म इन द कप. इट वाज लाइक द स्टॉर्म इन द कप. ये दोनों फ्रेजेस एग्जाम में पूछे गए हैं गाइस. ऑलराइट, नेक्स्ट तीसरा जो फैक्ट है दैट इज कुछ कैरेक्टर्स हैं. बेटी वाज नेम ऑफ द मेड, वेरी इंपॉर्टेंट. शॉक was the name of the lap dog of ब्लिंडा. क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज एरियल. एरियल का कैरेक्टर भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. एरियल जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट है.
और एरियल ही बिलिंडा को बताती है कि देयर इज़ समथिंग ड्रेडफुल गोइंग अपॉन यू, देयर इज़ समथिंग ड्रेडफुल गोइंग टू बी हैपेंड विद यू, राइट. नेक्स्ट इज थिलस्ट्रेस. थिलस्ट्रेस जो है, शी इज़ फ्रेंड ऑफ बिलिंडा, शी इज़ वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ बिलिंडा. ऑल राइट. नेक्स्ट फैक्ट की बात कर रहा हूँ. लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट. नेक्स्ट क्लैरिसा की बात मैं सबसे पहले कर चुका हूँ. नेक्स्ट इज सर प्ल्यूम. सर प्ल्यूम इज द शूटर ऑफ, he is the suitor of Thalestres. All right. Next is Momentilla. Momentilla is he is a Gorgon spirit of the watch of Belinda. Belinda की watch की protection को ये कर रहा है, right? Next is Crispizza. Crispizza is again a Gorgon spirit who is protecting the locks of Belinda. All right, इन सारी चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए. शॉक लैप डॉग है, मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ. All right, कहानी आप खुद पढ़िएगा. एंड लास्ट पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जब लॉर्ड पीटर ने बिलिंडा के बाल को काटा तो बाल काटने के बाद कहाँ गया था. सो दैट लॉक वॉज turned into a celestial body. All right, that lock was turned into celestial body. Okay, celestial body का मतलब क्या होता है? heavenly body, यानी वो चांद, सितारा, बादल, सूरज किसी में टर्न हो गया था. ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. बिलिंडा जो है, शी इज़ रिपीटेडली कंपेयर्ड विद सन, सूरज, बाय पोप. बिलिंडा को इस वर्क के अंदर बार बार कंपेयर किया गया है. किसके साथ? सन के साथ. ऑल राइट. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. एसे ऑन मैन की बात करी, जो भी डिटेल आपको बताई गई उसको रटना अच्छे से. और रेप ऑफ द लॉक की बात करी, इसको भी दिमाग में रखना है. मास्टर कार्डर पंजाब के लिए जितने भी ये मैंने फैक्ट्स आपको बताए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. यूजीसी नेट तो खैर मेरा सोल कोर्स है जिसके लिए मैं कोर्स चला रहा हूँ. बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मैं स्पेशली बात करूँगा मास्टर कार्डर पंजाब की. बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये. ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, रिवीजन पे फोकस करें, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट बाय द थिंग्स, एंड आई विश यू अ गुड लक फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जाम्स. बाय बाय.